ਹਾਂਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ। 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ, ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਹਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰੋਂ ਗੂੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰੀ। ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਘਰੋਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਲਾਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਬੋਤਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਸਲੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੈੱਡ ਔਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਮੋਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬ੍ਰਾਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੀ ਬ੍ਰਾਸਲੇਟ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ 10 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 2-4 ਪੰਖੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਆਨੰਦਮਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਘੜੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦਿਨ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਈ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਦਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ।
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਇਸ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੂੰ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਤਸੰਗੀ ਘਰੇ ਭੇਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਕਹਾਂ ਕੀ ਵੋ ਨਗਰੀ, ਕਹਾਂ ਕੇ ਬੋ ਲੋਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਗੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਕੀ ਵੋ ਨਗਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਉੱਪਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈ ਰੱਖੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਹੋਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਿਤਨੇਮ। ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਨਿਤ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਗਤ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਸ਼ਟ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਮਾਲਕਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੜਾਇਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਢਕਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਚੁਣੀ ਚੁਣੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨ ਦਾ।
ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲਏਗਾ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਕਰਿਓ, ਸੜਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਖੋਦਿਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ 3 ਖੋਡੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ 2। ਉਹ ਉਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 2 ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਜਿਕ ਮੂਜਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘੱਟਾ ਹੋਲੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਜੋੜ ਪਿਆਰਿਆ ਚਿੱਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਮੋੜ ਪਿਆਰਿਆ, ਚਿੱਤ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आई हूँ आप सबके पास गुरु जी के प्यारे प्यारे से संदेशे लेकर। और मेरे पास गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज ऑलरेडी आ रखे हैं, और बहुत सारे आ रखे हैं। मैं व्हाट्सएप को ऊपर करती जाती हूँ और देखती हूँ तो बहुत सारे मैसेज आए रखे हैं। अब क्या करूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है, प्रयास रहता है, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि सबके सत्संग में साझा करूँ। और ये ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, जो गुरु जी के हुक्म से आपके पास पहुँच रही हैं। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है, क्योंकि सत्संग थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं, कोई सत्संग सच में बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। अब देखिए, 10-15 मिनट का तो मामूली बात के लिए कोई एक सत्संग होता है। कई बार 2-3 मिनट के भी होते हैं, कई बार 10-15 मिनट के भी होते हैं, कई बार 30-35 मिनट, 40-50-45 मिनट तक के भी सत्संग आ जाते हैं, है ना संगत जी। अब जैसी गुरु जी की इच्छा, है ना। और संगत जी, मैं तो ये कहूँगी कि सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में जब आप बैठते हैं और थोड़ा ध्यान लगाकर सुनते हैं तो गुरुजी करते हैं आपसे बातचीत, है ना। संगत परिवार से बातचीत करने का ये बहुत
प्यारा सा तरीका है गुरुजी का। ब्लेसिंग्स के माध्यम से बातचीत होती है और संदेशे आते हैं गुरुजी के, और गुरुजी जो भी आपसे कहना चाहते हैं वो ब्लेसिंग्स के थ्रू, सत्संग के थ्रू कहते हैं। और ये संकेत होते हैं जो हमें खुद से डिकोड करने होते हैं, समझने होते हैं। तो संगत जी, वैसे भी आपने सुना ही होगा, आजकल देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है कि 2025 ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें आ रही है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये थोड़ा सा टेंशन का विषय भी है। जैसे सुन रहे हैं जी, यहाँ जलमग्न हो जाएगा, यहाँ जलमग्न हो जाएगा। आजकल ये जो महाकुंभ चल रहा है, इसमें बहुत सारे जो नागा साधु आ रखे हैं, तो थोड़ा मैंने इनको भी सुना था। तो इसमें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें, और इसके अलावा भी जो मैंने थोड़ा पहले से भी सुना है, दिसंबर के 2024 दिसंबर में भी मैंने ऐसा ही सुना था कुछ। वो नागा साधु की बात नहीं थी, वो नॉर्मली ही न्यूज़ में भी सुना है मैंने। तो ये इस तरह से जो आ रहा है, कितना सच कितना झूठ ये तो हम नहीं जानते, तब कुदरत की बातें हैं। लेकिन कहते हैं कि 2025 थोड़ा सा खतरनाक है ना। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो परमात्मा के हाथ में है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति, ध्यान, सेवा, सिमरन ये सब करना चाहिए, है ना। और यदि हम कभी परेशान हैं और लग रहा है कि हमारी कोई अरदास नहीं पूरी हो रही है ना, अभी वक्त ज़्यादा लग रहा है, तो गुरुजी कहते हैं वक्त ज़्यादा लग रहा है तो तेरा काम पक्का हो रहा है ना। मतलब अगर हम विश्वास कर रहे हैं ना, तो फिर हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। विश्वास का मतलब फिर विश्वास है ना। डाउट नहीं लेके आना है मन में। और मैं आपको कहती हूँ, देखिए अगर हमारे भाव हैं, है ना, भाव गुरुजी के प्रति हमारे भाव हैं, तो भाव से हमारी भावना जागृत हो जाती है, और भावना है तो भावना से हमारी भक्ति जागृत हो जाती है, और जब हमारी भक्ति होती है तो हमारा भाग्य तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो सत्संग अगर लंबे हो भी जाए ना, तो प्लीज़ परेशान मत होइए, सत्संग को सुनिए। अगर बीच में कोई आपका अर्जेंट काम आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, फिर दोबारा से कंटिन्यू कर लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप सत्संग को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ना संगत जी, तो आप सत्संग सुनिएगा भी ज़रूर। और जब आपका सत्संग आता है, आपको लगता है कि हाँ सत्संग शेयर हो गया है, तो कमेंट में बस इतना सा ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपका सत्संग शेयर हुआ और आपको बहुत खुशी मिली। बस वो खुशी से ही मुझे इतना ज़्यादा अवार्ड मिल जाएगा ना, कि आपका वो वर्ड कि आपको खुशी हुई, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड होगा कि हाँ आपको खुशी हुई। तो संगत जी, मुझे अच्छा लगेगा। तो सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे से सत्संग। और सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं, और किन किन पर कृपा हो रही है आज गुरुजी की, किन किन को वो आज ब्लेस कर रहे हैं सत्संग शेयर करवा के और सत्संग सुनवा के, वो तो देखिए गुरुजी जाने, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं करा है कि किन किन के सत्संग शेयर होंगे, है ना। तो गुरुजी आज जो शेयर करवा रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि रिटर्न में भी है एक सत्संग, और ये रिटर्न में आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं आपकी बेटी राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, न्यू ईयर से पहले ही मैसेज आ रहा था कि 1 जनवरी को मैं तेरे घर आऊँगा, तू ग्रीन कलर की शॉल मेरे लिए तैयार रखना। संगत जी, 31 को हम लोग अपने घर में नहीं थे, और 1 तारीख को ही हम लोग घर आए, और मैं शॉल खरीद ली, पर रात तक कोई भी नहीं आया। अब मुझे लगा कि अब गुरुजी ने तो कहा था कि वह आएंगे, पर वह आए ही नहीं। जितने में हमारे घर पर जो आंटी खाना बनाने आती है, इतने हो गए, है ना, इतने में हमारे घर जो आंटी खाना बनाने आती है, बाई चांस ही उनका बेटा घर पर आया, और मैंने वह ग्रीन शॉल गुरुजी के निमित्त उसे बच्चे को दे दी। शुक्राना गुरुजी, जो आपने न्यू ईयर पर हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। सुमन आंटी जी,
जो डेली हम आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग था राजस्थान से, है ना। देखिए कितना कनेक्शन, कहाँ मैं कभी राजस्थान नहीं गई लेकिन सत्संग सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये शिमला का है, ये हिमाचल का है, ये चंडीगढ़ का है, ये दिल्ली का, गुड़गांव का, और अमेरिका का, कनाडा का। मतलब ये सिर्फ मेरे को ये शब्द ही इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। इन छोटी छोटी बातों से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ कि कभी आप जब सत्संग सुनते हैं ना, तो आप ये सत्संग सुन कहाँ से रहे हैं। एक बार, हाँ, एक बार एक आंटी ने लिखा था कि नेपाल से। सच में मुझे इतनी हार्दिक खुशी हुई ना कि है नेपाल तक जा रहा है सत्संग। मतलब ऐसी वाली खुशी हुई जैसे कोई छोटे बच्चे वाली खुशी हो ना, बस इसी तरह से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी सारी ढेरों 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 खुशियाँ देने के लिए। सच में संगत जी, ये भी एक मतलब बहुत ही इसको शब्दों में कहना शायद संभव नहीं है कि वो मतलब अंदर से जो मन खुश होता है ना, क्या, हाँ, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो यदि आप बता सके, नाम नहीं बताइए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब सत्संग शेयर करते हैं तो ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से सत्संग शेयर कर रहे हैं। मुझे बस वो सिटी जान के भी बहुत अच्छा लगता है कि आप किस सिटी से हैं। और जब सुनते हैं तो वो भी कमेंट में भी आप ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से हैं, है ना। तो संगत जी, अब सुनते हैं हम ऑडियो वाले सत्संग, है ना। और संगत जी, यदि आपके भी सत्संग हैं, सत्संग जो गुरु जी ने आपका कल्याण किया है, आप यदि साझा करना चाहते हैं गुरु परिवार के साथ, तो यहाँ पे मैं सुमन आंटी आपका सत्संग शेयर करूँगी। आप मुझे ऑडियो में क्लियर वॉइस में भेजिएगा, रिकॉर्ड करके 9548842997 पर। हाँ जी संगत जी, मैं अपना फ़ोन नंबर दे रही हूँ, सत्संग शेयर करने के लिए दे रही हूँ। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। जितना भी मेरा पुराना वाला संगत परिवार है, पहले के संगत परिवार के साथी हैं, बहन हैं, भाई हैं, ये आंटी अंकल जितने भी हैं, सब जानते हैं कि सुमन आंटी को फ़ोन नहीं करना है। तो वो सब जानते हैं, लेकिन जो नए संगत परिवार में शामिल हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके कॉल मत कीजिएगा और केवल अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिएगा। और संगत जी, मैं आजकल कम्युनिटी में भी कुछ जो रिटर्न आते हैं मेरे पास, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ। आप वहाँ पे भी हैंड रिटर्न जो होते हैं मैं डालती हूँ सत्संग, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर उनको पढ़िएगा और अपनी हाजिरी लगाइएगा। सत्संग सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी को बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे सकता है। तो आप एक शेयर कीजिएगा, 2 शेयर कीजिएगा, आपकी जितनी इच्छा हो उतना कीजिएगा, लेकिन एक शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग। और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर जो भी सत्संग आंटी और अंकल सुन रहे हैं, उन आंटी अंकल को गुरु जी खूब खुशियाँ दें, उनके कष्ट दूर करें, उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें और गुरु जी करेंगे कल्याण। आप कमेंट में ज़रूर 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 शुक्राना कीजिएगा। और गुरु जी का मंत्र जब भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, गुड़गांव से सविता। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। शाम के 7:26 हो रहे हैं और ये मेरा शाम का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा उन पे खूब अपनी ब्लेसिंग दें, खूब अपनी मेहर बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 2-3 दिन पहले का है। संगत जी, ऐसा हुआ कि शाम का टाइम था, 9:30 बज रही थी। बहुत ठंड थी उस दिन
और मैंने सारा काम किया जल्दी जल्दी और सबको खाना खिला के फिर मैंने दूध गर्म करके और सबको दिया। उसके बाद और जो वो दूध के बर्तन थे उनको मांजने के बाद मेरे हाथ और ठंडे हो गए। तो मैंने क्या किया, अपनी गैस ऑन करके और अपने हाथ सेकने लगी। मैंने कम से कम 10-12 मिनट हाथ सेके, मुँह सेका, आँखें बंद कर कर के माथा, आँखें सब सिकाई की अच्छी तरह से। और जब मैं गैस नीचे से सिलेंडर बंद किया और फिर मैं गैस ऊपर से बंद करने लगी, तब मैंने देखा कि मेरे साइड वाला गैस चूल्हा जो होता है, चूल्हे हमारी गैस 3 उस वाली है, चूल्हे वाली, तो एक ओपन था, खुला हुआ था संगत जी। 10-12 मिनट तो कम से कम मैंने गैस ऑन रखी थी और पता नहीं कैसे मेरे ये संग में कोई हादसा नहीं हुआ, गुरुजी ने मुझे बचा लिया और ना ही मुझे महक आई। और पता नहीं या तो ज़्यादा ठंड की वजह से या कैसे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा मेरे ऊपर बनी कि नहीं तो मतलब मेरे कपड़ों तक कोई मतलब आँच पहुँची या कुछ है। 10-15 मिनट तो बहुत हो जाते हैं, जो बराबर में चूल्हा चल रहा है और एक चूल्हा ओपन ऐसे ही खाली बस ऑन कर रखा है और उस पे पता नहीं संगत जी, गुरुपा का 2-3 दिन पहले भी मैसेज भी आया था, ये 2-3 दिन तेरे ऊपर भारी हैं बेटी, थोड़ा संभल के रहना। तो गुरुपा ने मेरी यहाँ रक्षा की, मुझ पे यहाँ कृपा बरसाई और बस मैं तो आज मैं वो शुक्राना करने बैठी हूँ गुरुजी महाराज का। जब भी मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, मैंने अपनी बेटी को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया आज तो मेरे साथ में, मुझे तो गुरुपा ने ही बचा लिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक शुक्राना मेरा ये कल का है संगत जी। कल लोहड़ी के दिन हमें गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड अंकल, हम चारों गए थे। एक बेटा मेरा नोएडा जॉब करता है तो उसे छुट्टी नहीं मिली, वो नहीं आ पाया। गुरुपा ने उसे वहीं ब्लेस किया। जय गुरु जी। और हम जब गए तो संगत जी बड़ा मंदिर में इतनी अच्छी डेकोरेशन थी, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा सजा रखा था, बहुत प्यारा। गुरुपा के यहाँ तो वैसे भी मन लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर उस दिन तो कल तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लोहड़ी लेने गए थे हम सब, गुरुपा ने बुलाया था। गुरुपा ने बहुत अपनी हमारे ऊपर अपनी मेहर दिखाई, जो हमें अपनी दर्शन के लिए कल बुलाया। इच्छा तो मेरी 1 जनवरी को ही थी, मगर उस बेटे के लिए की तरफ से ही ना जा पाए, मगर बेटा जब भी नहीं आ पाया तो हम फिर कल गए और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था, बेटी मेरे बड़े मंदिर आ और मुझसे लोहड़ी लेके जा। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, हमने वहाँ पे चाय प्रसादी ली और समोसा प्रसादी, गाजर का हलवा और उसमें पैक थी मूंगफली, रेवड़ी और ये गज्जक वगैरह क्या क्या होते हैं, ये सब पंजाबियों का त्योहार हमने पहली बार बनाया मेरे गुरुपा की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत अच्छा लगा हमें गुरुपा, बहुत अच्छा लगा आपके मंदिर में, आपके अपने घर में आपने हमें बुलाया। जय गुरु जी महाराज। हम ऊपर गए थे, हमें गुरुपा ने ऊपर छत पे, वहाँ पे टेरेस पे हॉल में पर अपना लंगर प्रसाद कराया, उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग आज का है जो हम लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति। हमारे यहाँ चूरमा बनता है संगत जी, हमने चूरमा और घी डालकर अच्छी तरह से गुरुपा का भोग लगाया, खूब दान किया। आज के दिन गुरुपा ने हमारे मकर संक्रांति पे हमें खूब ब्लेस किया। जय गुरु जी महाराज, जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा अपनी मेहर हम सब पे ऐसे ही बरसाओ, अपनी संगत पर ऐसे ही बरसाओ गुरुपा, सब पे कृपा करो। जय गुरु जी महाराज। मैं आपका मंत्र जाप करना शुरू में भूल गई, उसके लिए माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदन सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदन सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई गलती है हो तो माफ़ करना गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा करना। और
मेरे इस सत्संग शुक्राना सत्संग को स्वीकार करो। हम सब पे अपनी कृपा बरसाओ, सभी संगत पे अपनी कृपा बरसाओ। गुरुपा एक विनती और है मेरी। मैंने एक सत्संग सुना था, एक आंटी का बेटा बहुत बीमार है, वो आंटी बहुत ज़्यादा अरदास कर रही थी। गुरुपा मेरी तरफ से भी मेरी विनती, मेरी अरदास स्वीकार कर लो। उनके बच्चे को भी शीघ्रता से ठीक करो गुरुपा, उन्हें भी लाइफ ब्लेस करो गुरुपा। हर बच्चे पे अपनी कृपा बनाओ गुरुपा, बस अपनी कृपा दृष्टि वहाँ तक जरूर पहुँचाना। उन आंटी ने दोबारा सत्संग शेयर नहीं किया, मुझे मेरा तो बहुत ध्यान रहता है उनके बच्चा बस ठीक हो जाए गुरुपा। एक माँ के दिल पे क्या बीतती है जब उसका बच्चा इतना बीमार होता है, तो मैं बहुत जानती हूँ अच्छी तरह से गुरुपा। उन पे अपनी कृपा बरसाना गुरुपा, ये मेरी दिल से दुआ है गुरुजी महाराज। उनके बेटे को ठीक करना। जय गुरुजी महाराज। कोई गलती हरी हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदन सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदन सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय हो। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी तो बहुत महान है। आज गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि आज कुड़ी मैं तेरे घर आऊंगा और तुझे गिफ्ट देके जाऊंगा। कुछ नहीं, मैंने जैसे और मैसेज पढ़े थे ऐसे ही पढ़ लिया। मुझे लगा कि आज पता नहीं गुरु जी क्या करेंगे। फिर मेरी सवेरे मेरी बहन का फोन आया कि वो मेरे घर पे आना चाह रही है, तो 1-1:30 बजे करीब वो आई मेरे घर पे। और उसके बाद हमारी बहुत बात होती रही, बहुत 2-3 घंटे निकल गए ऐसे ही। फिर वो आई गुरुजी के मंदिर में, वो गुरुजी की पुरानी संगत है। और वो आई, फिर जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहाँ आके उसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया गुरुजी को। फिर मैंने कहा सुनो, और फिर उसने मुझे एक लॉकेट दिया गुरुजी का। सॉरी, लॉकेट नहीं, एक ब्रेसलेट दिया उसने मुझे। और कुछ नहीं, मैंने ले लिया। फिर सडन मुझे याद आया कि आज तो गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा और तुझे एक गिफ्ट देके जाऊंगा। और वो मेरी 4-5 साल पुरानी सत्संगी है। गुरुजी की बहुत फैन है वो। मैं तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। ओहो, गुरुजी आज मेरी बहन के रूप में आए थे और मुझे इतना प्यारा ब्रेसलेट देके गए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत का आप ऐसे ही ध्यान रखना गुरुजी। सुमन आंटी का भी बहुत ब्लेस करना। हम सबको खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा आप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठ के कर रही हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज सुबह का मैं शुक्राना अमृत वेला का नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी कर रही हूँ उसका। सुबह का अमृत वेला का शुक्राना अभी कर रही हूँ। 11:50 हो रहे हैं। गुरुपा काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी। तो शुरू करने से पहले गुरुपा को आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और पूरे मेरे संगत परिवार को भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सब अच्छा हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। गुरुपा आप भी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। आप हमें हमारे साथ ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए। और मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे प्यारे पापा। गुरुपा के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत छोटे से गुरुपा के साथ जुड़ चुकी हूँ। जन्म जन्म का है गुरुपा के साथ। लेकिन गुरुपा ने
पूरा अपनी बेटी बनाए हैं 2024 जून से। तो एकदम से गुरुपा ने मेरे हाथ पकड़ा, तो इसके लिए भी गुरुपा को बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना गुरुपा कि आप मैं आपकी बेटी बन पाई और आप मेरे जीवन में आए, और मेरे इससे बड़ी मैंने भागा वाला बात क्या हो सकती है। मेरे अहोम भाग्य है कि मैं आपकी बेटी बन पाई। तो गुरुपा आप आए तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ मेरे जीवन में, बहुत कुछ, मतलब मुझे पता भी नहीं था क्या-क्या मेरे साथ हो रहा है। लेकिन आप आने के बाद आपने मेरे को सब कुछ बताया कि क्या-क्या हो रहा है, कैसे क्या-क्या कौन कर रहा है, और आपने मुझे चेहरे भी दिखाए कि कौन तेरे साथ करे, जिनके लिए तू इतना सोचती है, करती है, तो वो तेरे लिए नहीं है, तो वो सारे रिश्ते आपने काट दिए हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो हो गए सो हो गए, मैं इसके लिए और नहीं सोचती, बस मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ आपके हाथ पकड़ के। और इस आज से बहुत, आज पावन दिन है और आज से बहुत, मतलब अच्छे-अच्छे चीज़ होने वाले हैं। पूरे संगत परिवार के साथ, सबके साथ, सबका सब मनोकामना पूर्ण होगा गुरुपा। आप हो तो सब कुछ होगा। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अंग-संग रहिए, हमें हिम्मत दीजिए कि हम आगे ऐसे बढ़ते जाएँ, कुछ कर पाएँ। और जो अरदास गुरुपा आपके पास है, आपको पता है, आपको तो मन की बातें सारा पता होता है, तो आप जान ही जानो, अब तो सब मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही हमें हिम्मत देना गुरुपा कि हम मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाएँ और जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। और पूरे संगत परिवार के में जो जितने बच्चे हैं, सबका मतलब सब बहुत आगे जाए, सबका ओहदा अच्छा हो, सब अच्छे पोज़ीशन में जाए, और जिनको बहुत अच्छी नौकरी मिलनी है या जाने वाले हैं, वो मिल जाए उनका। और सारे हम जितने गृहिणियाँ हैं, जितने वर्किंग वुमन हैं, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो गुरुपा। बस ऐसे ही आपके आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहे, तो हम सब कुछ कर पाएँगे गुरुपा। और जो आप हमें हर चीज़ के लिए समझाते हो, इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। हम दिन भर बहुत गलतियाँ करते हैं गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप समझाते हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये आपके अलावा कोई नहीं समझाता गुरुपा। आप हमारे पापा हो, हमारे परम पिता हो, तो आप हमें हर मुसीबत से बचाते हो, हर मतलब मुश्किल से निकालते हो। इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना गुरुपा। और मैं आज अभी आपके स्वरूप के सामने खड़ी होके शुक्राना कर रही हूँ। और मैंने एक चीज़ देखा है, जब भी मैं आपके स्वरूप के सामने खड़ी होके शुक्राना करती हूँ ना, मुझे अलग-सा एक फ़ीलिंग होता है। पता नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा फ़ीलिंग होता है, और मन में एक अजीब-सा ऊर्जा आ जाती है। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मतलब लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, और थैंक यू हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। जो आपने मेरे हाथ पकड़ने के बाद, पहले भी आप हाथ पकड़े थे शुरू से, नहीं तो मैं हम लोग कब खत्म हो जाते। आप अगर नहीं हाथ पकड़ के रखे होते तो आज हम यहाँ खड़े होके आपको शुक्राना भी नहीं कर पाते। तो आपके हाथ पकड़ने से ही सारा कुछ आज तक हुआ है। इतना दूर तक हम जर्नी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और आपके श्री चरण कमलों में जगह पाएँगे गुरुपा। बस ऐसे ही हम अच्छे-अच्छे काम करते जाएँ, ना किसी को अशब्द बोले, ना किसी का दिल दुखाए, ना निंदा-चुगली करे। बस हमें इतना दात बख्शना गुरुपा कि हम अच्छे-अच्छे सिर्फ़ अच्छे ही काम कर पाएँ और सबका भला कर पाएँ। जो मन में है करने के लिए वो भी कर पाएँ गुरुपा। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अंग-संग रहिए, और मेरे पूरा परिवार आपके ऊपर है गुरुपा, मैंने आपको दे दिया है। ये पूरा घर आपका है, ये पूरा परिवार आपका है, मैं आपकी हूँ, मेरे हस्बैंड आपके हैं, मेरे दोनों बच्चे, आप उनके नाना हो, बस आप देख लेना गुरुपा। बस इसी के साथ मैं आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना।
और जो दे के ले लिया है वो उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा आपने जो किया है वो मेरे अच्छे के लिए किया है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो इसी के साथ मैं नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ और पूरे परिवार को, पूरे में हमारे संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और उनके ऊपर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, पूरे फैमिली पर और पूरे संगत परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे गुरुपा। और आप भी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे क्योंकि आप हमारा हर कर्म काटते हो, हर कर्म। तो आपको भी कष्ट होता है गुरुपा, आप ध्यान रखना, बहुत ठंड है, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना और बस ऐसे ही हम आपके हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाएँ और गुरुपा बस ऐसे ही हिम्मत देना मेरे को, मैं कभी-कभी टूट जाती हूँ, होता है, क्या करूँ? इंसान हूँ ना, तो ये मत मतलब आइंदा से ना हो, इसी की मैं कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना, 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 लख-लख बार शुक्राना और सबको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाई। गुरुपा आपको और हमारे बजरंगबली जी को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मकर संक्रांति की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं जो कि इस चैनल पर अपलोड हुए हैं। तो सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी, कल ना लोहड़ी का पर्व था, तो मतलब मैं ना अपने सास ससुर से मतलब अलग हो गई हूँ, मतलब अलग जगह पे शिफ्ट हो गई हूँ। तो मेरे सास ससुर और देवर देवरानी ना पुराने मकान में ही रहते हैं। तो लेकिन हम ना लोहड़ी मनाने वहीं जाते हैं, पुराने घर में ही अपने मम्मी पापा के साथ। तो कल क्या हुआ ना, हमें शाम को निकलना था। हस्बैंड कहने लगे मैं ऑफिस से आ जाऊँगा, बेटा कहने लगा मैं भी ऑफिस आ जाऊँगा। तो मैं और मेरी बेटी थे, तो हमने कहा चलो हम शाम को पहुँच जाएंगे। लेकिन अचानक ना बेटी की बैंक वाली आ गई, अकाउंट खुलवाना था उसने। तो हम लेट हो गए पहुँचने में। तो लेकिन चलो उधर से कैब बुक कराई, तो कैब भी बार बार कैंसिल हो रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं आज क्या होगा, हम पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि 6:30 तो यहीं हो गए हैं। तो लेकिन वैसे 15 मिनट की दूरी पर ही हमारा घर है बाय कार। तो लेकिन फिर कैब आ गई और हम लोग ना वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचे तो अभी कुछ तैयारी थी नहीं। तो हमारी बुआ सास का घर भी ना, मतलब हमारी बुआ जी का वो पीछे ही है। तो उनके पोते की भी पहली लोहड़ी थी, तो मेरी सास कहने लगी कि पहले वहाँ चले जाओ। तो मैं और मेरी बिटिया वहाँ चले गए। तो वहाँ पे तो हमें बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे उनकी बहू थी, उनकी बेटी थी और मतलब बच्चे भी थे, उनके पोते की पहली लोहड़ी थी और लोग भी, उनके फ्रेंड वगैरह भी आए हुए थे। तो वो हमें देख ना बहुत खुश हुई और उन्होंने वहीं लोहड़ी जलाई और सबको प्रसाद दिया और खूब एंजॉय किया हमने वहाँ पे। और मैंने कहा जय गुरु जी, इतनी अच्छी लोहड़ी तो मेरी कभी नहीं मनी। तो हम तो घर में सिंपल लोहड़ी जला के और मतलब प्रसाद बांट देते हैं। तो वहाँ तो लेकिन हमें बहुत मज़ा आया और गुरु जी की कृपा से ना बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो उसके बाद ना हम मैं अपने ससुराल आ गई, थोड़ी सी दूरी पे ही है। मैं और मेरी बेटी फिर वहीं आ गए और वहाँ पे भी हमने लोहड़ी जलाई और हमारे ऊपर जो मैं अपना पोर्शन रेंट पे लेके आई हूँ वो लोग भी नीचे आ गए। तो और वो उन्होंने भी हमारे साथ लोहड़ी सेलिब्रेट की, प्रसाद वगैरह बांटा, बैठे गप्पे मारी और मूंगफली रेवड़ी का प्रसाद खाया। तो उन्होंने कहा, जो हमारे रेंट पे आए हैं उनका नाम सिमी है, तो उन्होंने कहा कि भाभी आप गुरुजी को मानते हो ना, तो मेरे घर ना परसों गुरुजी का सत्संग है, तो आप ज़रूर आना। मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई, मैं ना कई दिनों से सोच रही थी, मुझे कहीं से ना सत्संग से बुलावा नहीं आया। तो कहने लगी कोई बात नहीं भाभी, आप ना मेरे घर पर, पहले भी मैं उन्हीं के घर जब वो हमारे घर रेंट पे रहते शुरू शुरू में आए थे ना, तो पहले मैं उनके घर सत्संग में गई थी, तो वहीं से मेरी लगन लगी थी गुरुजी से। तो अब मतलब 8-9 महीने हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे घर परसों आना। तो कहने लगी आप ही का घर है तो आप अपने घर आना सत्संग पे, तो गुरुजी का बुलावा है। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। तो लेकिन उनका नाइट का है, 7 से 9 का। देखती हूँ अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं बेटे के साथ थोड़ी देर के लिए चली जाऊँगी वहाँ पे।
और ना फिर वो कहने लगी कि फिर मैंने कहा कि ना मेरा भी बहुत मन है सत्संग कराने का अपने घर में, तो नेक्स्ट मंथ ना हमारी एनिवर्सरी है। तो कहने लगी ठीक है भाभी आप करा लो, तो डेकोरेशन भी हम कर देंगे, चोला भी हम ले आएंगे, स्वरूप भी हम ले आएंगे। पहले वो बड़ी खुश हुई, कहने लगी और मेरी भाभियाँ भी आ जाएंगी, मैं भी आ जाऊँगी, हम मिल के ना आपके घर में सत्संग कर देंगे, तो आप टाइमिंग्स बता दो। तो मैंने कहा भाई टाइमिंग्स मैं दिन में रख सकती हूँ 3 से 5। तो कहने लगी फिर तो आपको ना चाय प्रसाद रखना पड़ेगा, फिर तो खाने का तो मतलब लंगर प्रसाद का तो नहीं रहेगा टाइम उस समय, तो आप चाय प्रसाद कर लेना। पहले भी आप वैसे भी आप पहली बार अपने घर में करा रहे हो, तो पहले आप छोटा सा ही करा लो, फिर आपको जैसे लगेगा फिर अब आगे जैसे गुरु जी की आगे होगी तो कराते रहना। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगी मेरी बिटिया मतलब डेकोरेशन, उनकी बिटिया कहने लगी कि आंटी डेकोरेशन तो मैं ही करूँगी, और सिमी भाभी ने बोला कि चोला मैं लाऊंगी, स्वरूप भी मैं लाऊंगी, और हम आपका मिलजुल के ना सत्संग कर देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि बिटिया तेरे घर ना बड़ी जल्दी सत्संग होने वाला है। तो देखो अचानक ही प्रोग्राम बन गया, और मेरे मन में भी था कि मैं सत्संग में कहीं जाऊँ, तो उन्होंने मुझे बुलावा भी दे दिया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई उनकी वो सुन के। तो यही मैंने कहा देखो गुरुजी हमारे मन की छोटी छोटी बातों को भी पहचान लेते हैं, सुन लेते हैं, और फिर उसको ना पूरा करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी मुझे अपने चरणों से जोड़ने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ना मेरे बच्चे और मेरा पति भी मतलब इनके चरणों से जुड़ जाएं। और मेरा ना बड़े मंदिर आने का भी बहुत मन है, तो मैं कभी गई नहीं हूँ। तो गुरुजी चाहेंगे तो मैं जल्दी ही वहाँ होके आऊँगी, और मैं डुगरी भी ज़रूर जाऊँगी एक बार, तो जैसा गुरुजी चाहेंगे। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और सुमन आंटी जी आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं ना, आपको भगवान जी ने मतलब गुरु जी ने ऐसी प्यारी सेवा दे रखी है, ऐसी सेवा किसी किसी को मिलती है वैसे करने के लिए ना। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप पे भी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपको सदा खुश रखें, और सारी संगत को भी ब्लेस करें। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तो हम आज अपने शुक्राना सत्संग में कुछ और शेयर कर रहे थे, लेकिन तब तक 2-3 डिस्टरबेंस आ गई मेरे पास। तो हमको लगा कि शायद गुरु पिताजी ये सत्संग ये शेयर नहीं करने, हमको कुछ और सत्संग शेयर करने बोल रहे हैं। तो हम वो सत्संग बताते हैं। 2 है छोटे-छोटे सत्संग। पहला ये है कि आज गुरु पिताजी के सामने हम बैठे, और उसके बाद उनसे शुक्र दातिया उनका एक भजन है, शब्द है, वो वाला बजा करके हम उनको शुक्राना करते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड उनको शो करते हैं हम। और वो डेली या कभी छोड़ के या कभी वो हमेशा हम समय-समय पे करते हैं। उस समय मेरे मन में ख़्याल आया, मेरी आँखों में आँसू आ गए। वो हमेशा आता है, ऐसा नहीं, जब भी उनको उनका शुक्र दातिया हम बजा करके उनके सामने डांस करते हैं या उनको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं या प्यार व्यक्त करते हैं गुरु पिताजी को अपना, तो उस समय मेरी आँख में आँसू आ जाता है। और आँसू आते-आते हम ये महसूस किए कि शुरुआत में जब हम गुरु पिताजी से जुड़े थे, गुरु पिताजी हमको जोड़े थे खुद से, ये आँसू कभी रुकते नहीं थे मेरे, कभी रुकते नहीं थे, और वो बहुत बहते थे, और वो दुःख के भी उसमें 99% आँसू दुःख के होते थे। और आज हम ये भजन चलाते समय पिताजी के सामने जो मेरे आँखों से आँसू निकले, वो उस आँसू से 50% निकले। मतलब जितना हम पहले 100% रोते थे, अभी हम 50% भी नहीं रोते, 30%, 40% रोते हैं। उसमें भी उस 30-40% में भी मेरे आधा से ज़्यादा खुशी के आँसू होते हैं। और अगर दुःख के आँसू थोड़ा बहुत होते भी हैं, तो वो मेरे माता-पिता के लिए होते हैं, जो मेरे मायके में थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति उनकी ठीक नहीं है, और हम नहीं चाहते कि बुढ़ापा में मेरे माँ-बाप को ये सब क्राइसिस झेलना पड़े, खाने-पीने के लिए, पहनने के लिए। ये तो कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा। तो इसके लिए थोड़ा दुःख मेरे मन में रहता है। बाकी मेरे अपने जीवन में पिताजी ने कोई तकलीफ नहीं छोड़ा है। तो आज ये शुक्राना सत्संग में हम ये बताना चाहते हैं कि पिताजी आज मेरे मन में ये भाव दिए हैं कि पहले मेरे आँखों में जितनी आँसू थी,
वो आधे के वो सूख गए, आधे आंसू बचे। और गुरु पिताजी जब आज मेरे आँख से आंसू निकले हैं तो गुरु पिताजी मुझे ये थॉट दिया है कि पुत्र, पहले तेरे आंखों में जितनी आंसू थी देख उसके कितने मैंने कम कर दिए हैं। और ये भी पिताजी ने मेरे दिमाग में थॉट दिया कि आने वाले समय में ये भी आंसू तुम्हारे नहीं बचेंगे। तू रोना भी चाहेगी तो तू रो नहीं पाएगी, क्योंकि रोने के लिए तेरे पास कुछ होगा ही नहीं। और ये थॉट पिताजी ने मुझे दिया है मेरे लिए, और ये और लोगों के लिए भी है, तभी हम ये शेयर कर रहे हैं। तो जिनको भी सत्संग मिले वो समझ जाइए कि आप पहले जितना आंसू बहाते थे आप आज उतना आंसू नहीं बहाते हैं। और पिताजी ये कह रहे हैं कि आगे आगे आपके पास ये भी आंसू नहीं रहेंगे बहने के लिए, क्योंकि पिताजी आपको खुशियों से सराबोर कर देंगे। पिताजी को पता है किसकी खुशी किस चीज़ में है, किसको पैसा चाहिए, किसको प्यार चाहिए, किसको घर चाहिए, किसको परिवार चाहिए, किसको हेल्थ चाहिए, सब पिताजी को पता है। तो ये एक मेरा शुक्राना सत्संग हुआ जो अभी रिसेंट पिताजी ने मुझे थॉट दिया है। और दूसरा ये है, न्यू ईयर के दिन हम सत्संग शेयर करना चाह रहे थे कि चलो आज शुक्राना सत्संग करते हैं। गुरु पिताजी का नया साल है तो पिताजी के लिए कुछ ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। तो उस समय क्या हुआ, हम 10-15 मिनट का सत्संग शेयर किए, पर वो सत्संग अचानक डिलीट, मतलब रिकॉर्डिंग करते समय वो डिलीट हो गया। लेकिन मेरे अंदर इतना मैच्योरिटी पिताजी ने अपला दी है कि अगर वो डिलीट हो गया तो पिताजी नहीं चाहते कि वो शेयर हो, इसलिए वो डिलीट हो गया। तो हम उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं किए। और हमको लगा शायद अभी किसी और का सत्संग शेयर होने का नंबर है, मेरा नहीं है। और हम जबरदस्ती नहीं करते, पिताजी की रजा में, पिताजी की मर्जी में रहते हैं हम। तो हमने छोड़ दिया। और आज देखिए 14 जनवरी है, आज ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला, क्योंकि उस समय मेरे सत्संग में शायद कुछ था नहीं शेयर करने के लिए, इसलिए पिताजी मुझे रोक दिया। और वो सत्संग रुकने के बाद वो सत्संग हम शेयर कर रहे थे अमृत वेला में, क्योंकि न्यू ईयर में हम अमृत वेला में उठे थे। अमृत वेला की ये सत्संग उनका, तो उठे तो वो नहीं हो पाए थे। उसके बाद जब 7:27 हुआ उसी दिन, उस समय भी हम पिताजी के पास बैठे हुए थे, तो मेरे अकाउंट में 7 रुपया मैसेज आया कि 7 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो हम सोचे, तो उसमें दिया किसी चीज़ का इंटरेस्ट या कुछ ऐसे, मेरे अकाउंट में 7 रुपया आया। तो हम सोचे 7 रुपया, तो हम किसी चीज़ का इंटरेस्ट आया नहीं आया, हम ये कुछ भी नहीं जानने की कोशिश की। हम समझ गए कि ये 7 नंबर न्यू ईयर में पिताजी ने मेरे अकाउंट को 7 रुपये से, यानी 7 नंबर से ब्लेस किया है। ये नहीं है कि पिताजी 7 लाख या 7 करोड़ डाल देंगे, ऐसा नहीं है। पिताजी ने, एक होता है ना, मतलब बोहनी किया, पिताजी ने मेरे अकाउंट में 7 रुपये डाला। ये उनका ये मतलब उनका ये था कि अब मेरा अकाउंट भरा रहेगा। मेरे अकाउंट को गुरु पिताजी ने ब्लेस कर दिया। 7:27 में 7 रुपया न्यू ईयर के दिन मेरे अकाउंट में आया। और अकाउंट के बारे में तो ऐसे भी पिताजी जब से आए तो ऐसा नहीं है, मेरे अकाउंट में कभी भी पूरा कंगाली तो नहीं रहता है। कंगाली तो पहले भी नहीं था, लेकिन आज पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। और ये भी पता है कि पिताजी आगे भी बहुत बेहतर करेंगे पिताजी। और सबको, हमको तो ये बिल्कुल भी पता है कि पैसे में ज़्यादा कोई खुशी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे संगत ऐसे भी हैं जो मेरा सत्संग अभी सुन रहे हैं, जो पैसे वाले होंगे। उनको भी ये चीज़ पता है कि पैसे ज़रूरत पूरा करता है, अंदर से खुश नहीं कर सकता। अंदर से खुश होने के लिए परमात्मा परमेश्वर से जुड़ना पड़ता है, पिताजी से जुड़ना पड़ता है, पिताजी को महसूस करना पड़ता है, पिताजी से कनेक्शन बनाना पड़ता है। तब जो खुशियाँ मिलती है वो अंदर से मिलती है। वो अंदरूनी खुशियाँ पैसों से नहीं आती। ये जिनके पास पैसा है, बहुत है, ज़रूरत भर है, सब जानते हैं। तो मेरा शुक्राना सत्संग हो गया। अब यही था आज का मेरा शुक्राना सत्संग, शेयर होना ना होना। वैसे देखिए, कोई हम शुक्राना सत्संग का ये मतलब ही नहीं है कि हम सत्संग शेयर करें और प्रेशराइज करें कि मेरा सत्संग शेयर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका सत्संग जब शेयर होना पड़ रहता है, जिनके सत्संग में कुछ ऐसा होता है जो किसी सत्संग के लिए ज़रूरी हो, तो वो शेयर होता है, वरना वो नहीं होता है। उसके लिए प्रेशर ना दे सुमन आंटी को, हम भी नहीं देते। सुमन आंटी, आपके पास बहुत सारे सत्संग हैं, आपको जो पहले सही लगे, गुरु पिताजी आपको जो आदेश दे, आप वो पहले शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। लव यू गुरु पिताजी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी आप सबको। आज मकर संक्रांति है, 14 डेट है। मेरे गुरुपा का संध्या वेला शुक्राना करने के लिए मैं भी छत पे चढ़ी हूँ। 8 बज रहे हैं।
मेरे मालिक का मैंने मैसेज जो देखा, उन्होंने बोला बेटी सबका शुक्राना आ गया, तेरा नहीं आया। तो मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। जी भर के आज आपने दान पुण्य करवाया, जो आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे मैं करती गई। शुक्राना मेरे मालिक का। माता जी के मंदिर भी बुलाया, हनुमान दादा के मंदिर भी बुलाया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आरती में 15-20 मिनट खड़े रहने का मौका मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला था कंबल दान करना, तो मेरे गुरुपा वो सब भी मैं करके आई, जितना हो सका, जो जो आपने बोला था, जितना हुआ, जो आपने करवाया सब वो किया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बस अब मेरे परिवार की रक्षा आप ही करेंगे। जैसे मैं वहाँ जाके खड़ी हुई तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। एक ऊपर कबूतर का फैदर सीधा आके मेरे कपड़ों पे, मेरी ब्लैक शॉल पे आके गिरा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी को याद कर रही थी, उनसे प्रेयर कर रही थी, हनुमान दादा से प्रेयर कर रही थी, तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। सामने देखिए पूनम का चांद है, इसमें गुरुजी का फेस दिख रहा है, अभी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अपना आशीर्वाद गुरुजी दे ही रहे हैं, साथ सदा अंग संग है मेरे गुरुपा। मेरे पति मेरे बच्चों की बुद्धि ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। रक्षा करना मेरे मालिक, सब कुछ अच्छा हो। मेरे बच्चे भी आ रहे हैं अहमदाबाद से, उनकी तबीयत ठीक रहे। मेरे बच्चों पर कृपा करना गुरुपा। जो कुछ करवाया आपने करवाया दान पुण्य, उसका फल मेरे मालिक सबको देना। सरबत का भला करना, सबकी रक्षा करना, मम्मी अंकल की भी रक्षा करना, उनकी तबीयत ठीक रखना गुरुपा। कल भी बेचारों चाचा जी को बहुत दर्द हुआ गुरुजी, अब प्लीज़ अब माफ़ कर दीजिए सबको। जो कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, उनके पास उनका ब्लैक मैजिक वापस भेजिए मेरे गुरुपा। आपसे अरदास कर रही हूँ मेरे गुरुपा। मेरे पति मेरे बच्चों की बुद्धि ठीक कीजिए, तबीयत ठीक कीजिए। उनको पता लग जाए कि उनकी माँ और बहन क्या कर रही हैं, कैसे कैसे घर में सबका बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर रही है मेरे गुरुपा। सारे मैसेज ब्लैक मैजिक वाले आ रहे हैं और सब माँ और बहन वाले आ रहे हैं गुरुपा, देख लीजिएगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का, हर बात का शुक्राना। सब संगत पर दया करना मेरे गुरुपा। जो जो इन ब्लैक मैजिक के चक्कर से परेशान है गुरुजी, सबको निकालना बाहर, सबको अपना हाथ पकड़ के बाहर निकालना, सबकी रक्षा करना, सब पर दया करना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। मेरे बच्चों की तबीयत ठीक रखना गुरुजी। कल से मेरी बेटी के स्कूल चालू हैं, उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए मेरे गुरुजी। पढ़ाई में ध्यान दे, अब वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, 10th में चली जाए गुरुपा। सब आप ही करेंगे, आपके ऊपर ही छोड़ा है मैंने। बाकी मेरी अहमदाबाद वाली बेटी की भी पढ़ाई अच्छी रखना। आप बोल रहे हैं आप ही उसको कामयाब करेंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पति भी मुझसे सॉरी बोले, क्योंकि अभी तक तो वो अकड़ ही रहे हैं। कल गलती की उन्होंने, वो तो मुझे मंदिर जाना था, इसलिए मैंने एक बार ही पूछ लिया कि आप चल रहे हो कि मैं जाऊँ, तो फिर वो बोल रहे मैं चल रहा हूँ। तो बस फिर उनको ऐसे कि हाँ इसने खुद बात कर ली है, अब ये झुकती रहेगी। बुआ जी के बेटे भी आए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, घर की रक्षा आप ही करेंगे। आज का सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी सासंग जी को गैर जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले प्यारा सा गुरु जी का जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने हमारा हाथ पकड़ा गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। और सबसे पहले लोहड़ी की लख लख अनंतम अनंतम
बहुत बहुत बधाइयाँ गुरुजी, बहुत बहुत बधाइयाँ सारी संगत जी को। और सुमन आंटी जी आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत करें गुरुजी। बहुत खुशियाँ दें सबको, स्वस्थ रखें, खुशियाँ दें बहुत ज़्यादा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरा सत्संग मैं कहती गुरुजी, मैंने गुरुजी ने मेरा हाथ जब से पकड़ा है, मैं इतनी परेशान थी, संगत जी इतनी परेशान थी, गुरुजी ने मेरे, अब मैं जो जो दिखते मेरे परेशानियाँ थी ना संगत जी, मेरे साथ क्या दिक्कत थी कि मैं कभी अकेले कमरे में रह नहीं सकती थी। मैं ना जब भी अकेले, जैसे घर में कोई नहीं होता था, अंकल मेरी ड्यूटी चले जाते थे, बच्चे काम पे करने चले, मैं जॉइंट फैमिली में थी, मैं अपने कमरे में आके लेटती थी ना, तो संगत जी मुझे ना कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे दबा देती थी। मैं मतलब इतना हो गई थी, मैं अपने कमरे में आके लेट नहीं सकती थी, मैं आराम नहीं कर सकती थी अपने कमरे में आके। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं ना सबके बीच बीच में बैठी रहूं। और जब जब मैं अपने कमरे में आके सोती थी, मेरी आंख बंद जैसी करती थी ना, कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे आके दबा देती थी। और ना मेरा, मगर अगर मैंने करवट ले रखी है तो मुझे हिलने नहीं देती थी, और ना ही मेरे मुंह से आवाज़ निकलने देती थी। और एकदम से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कस के चिल्ला के एकदम से बाहर निकल भागती थी कि पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, मुझे दिखती भी नहीं थी कुछ, और वो मुझे बहुत दबाती थी, रात में भी दबा देती थी, दिन में भी। मगर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा ना, अब मेरे को कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आराम से सोती हूँ, बिंदास सोती हूँ। मैं अपने कमरे में भी आराम से सोती हूँ, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ हो, आराम से तसल्ली से मैं सोती हूँ। और गुरुजी इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी रक्षा करने का मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ। ਪਲ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲ ਪਲ अंकल ਦੀ ਰੱਖਿਆ कर रहे हो। पता नहीं गुरु जी ने कब से हमारी रक्षा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं पता था हमें, मगर आज जाके पता चला कि हमारे सर के ऊपर भी हमारा बाप बैठा है। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ तो इतनी परेशानियाँ आई हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी कहते हैं ना लोग सुखी रहते हैं, मैंने कभी सुख नहीं देखा जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी। भरपूर मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी, बहुत सबको खुश करने की मैंने बहुत कोशिश करी। आज छोटा खुश न रहे, बड़ा खुश होए, कोई दिक्कत ना हो किसी को, सबको खुश करने की मैंने बहुत कोशिश करी। मगर संगत जी कोई खुश नहीं रहा, कभी खुश नहीं रहा। मैंने अपनी शरीर का नहीं देखा कि हाँ भी मेरे शरीर में परेशानी है, दिखते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं। मैंने जी जान लगा के मेहनत करी है, जी जान लगा के जॉइंट फैमिली के अंदर। बहुत परेशानियाँ आई गुरुजी, मुझे बहुत परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे दर्द भी होता था, परेशानी, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मुझे ये बचा कौन रहा है। बहुत मैं वाहिगुरु जी को बहुत मानती थी। गुरु जी जब मुझे मिले नहीं थे उससे पहले, मैंने कभी उनका दरबार नहीं छोड़ा। बचपन से ही, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने कभी वाहिगुरु जी का दरबार नहीं छोड़ा। हमेशा गुरु घर गई हूँ, हमेशा। मेरा बचपन ही मेरे गुरु घर में बीता, और शादी के बाद भी जाती रही हूँ। मगर मेरे को इतनी दिक्कतें आई ना, मुझे उन परेशानियों से निकालते मेरे को कोई दिक्कत होती थी, घर के अंदर भी कोई दिक्कत होती थी, मैं गुरुजी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे बैठ के बहुत रोती थी, क्योंकि मेरे को सुनने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं सुनता मेरे को क्या दिक्कत है। मायके परिवार में मम्मी पापा बुजुर्ग थे बहुत, मैं अपनी परेशानियाँ उनको भी नहीं बोलती थी। मैं ये सोच के नहीं बोलती थी कि अगर मैं इतनी परेशान होकर उनको बताऊँगी, वो तो बुजुर्गी में मर जाएंगे, ज़्यादा अपना टाइम से पहले ख़त्म हो जाएंगे। खैर अब तो मेरे मम्मी पापा नहीं है संगत जी। बहुत परेशानियाँ झेली हैं मैंने, बहुत ज़्यादा। मगर आज गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपना दुख सुनाने वाला मेरा बाप बैठा है, मेरे महाशिव बैठे, मेरे गुरु पिता बैठे, मेरे सर के ऊपर उन्होंने अपना हाथ रख दिया। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे आज अपनी परेशानियाँ, अपने दुख में अपने बाप से बात कर सकती हूँ, अपने गुरु पिता से बात कर सकती हूँ कि गुरुजी मनो है परेशानी, गुरुजी मनो परेशानी। और सच में संगत जी, मैंने बोलना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अभी सोचती ही हूँ तो मेरा काम हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मगर बस आपसे दो हाथ जोड़ के यही अरदास है कि जो कष्ट, जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें मैंने झेली, मेरे बच्चों को ना झेलने को मिले।
जो मैजिक जो ब्लैक मैजिक मैंने झेले, मेरे बच्चों को जहाँ झेलने को मिले गुरुजी। मैंने मायके से भी ब्लैक मैजिक झेला, ससुराल में आके गुरुजी कहते तेरे ते बहुत मारन क्रिया की हुई है। बहुत बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस कराया, बहुत बार मेरे को न्यू लाइफ दी है, बहुत बार, अनंतम बार। हम अनंतम बार गुरुजी का शुक्राना करते हैं ना, तो गुरुजी ने भी अनंतम बार हमें बचाया है, बहुत ज़्यादा बचाया मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को अब तक बचाते आ रहे हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर वेले हर पहर का शुक्राना गुरु पिता, अनंतम तम शुक्राना गुरु पिता। अगर आप ना होते ना गुरुजी, मैं नहीं रहना सी गुरुजी। मैनू तो पता ही नहीं सी मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर तुसी मैनू ऐसी जान दी गुरुजी ने, प्राण वो किते ने तुसी मेरे परमात्मा। मैं आज जी रही हाँ तो सिर्फ तुहाडी वजह नाल गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी तो वो हमारे लिए वो है कि एक शरीर के अंदर अगर जान निकल जाती है, वो शरीर अधमरा हो जाता है ना, तो गुरुजी हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। अगर हमारी आत्मा ही हमारे साथ नहीं होगी ना, तो हम बेजान हैं। तो गुरुजी कभी भी हमारा हाथ न छोड़ना, हमेशा अपने चरणों में ला के रखना, अपने चरणों के पास बैठा के रखना। बस गुरुजी यही अरदास है आपके आगे। गुरुजी के पास मेरे पास बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज कि मेरा ना रोना भी निकल आता है कि मैं जो गुरुजी मुझे आज ये जितने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि मैं उस लायक थी क्या कि पुत्र तू मेरी धी है, तू रोया ना कर, तू अपना दुख मनु सुनाया कर कि तेरा अच्छे समय आने वाला है, तेरा समय पलटन वाला है। गुरुजी मेरा समय तो उसी दिन पलट गया सी जिस दिन तुसी मेरा हाथ फड़िया सी गुरुजी। मेरा समय उसी दिन पलट गया गुरुजी, उसी दिन। मेरा समय 2023 पलट गया गुरुजी, पलट गया जब मेरे प्यो ने मेरा हाथ फड़िया। बस गुरुजी थोड़ी तो यही अरदास है, कभी हाथ ना छुड़ाना गुरुजी, कभी हाथ ना छुड़ाना, क्योंकि ये चीज जड़ी जान है ना थोड़ी गुरुजी, शरीर खत्म हो जाएगा गुरुजी। इन्नी मोहलत दे देना गुरुजी कि मैं बच्चे स्टैंड कर सका, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े सीधे ने गुरुजी। जिस तरह सीधे पंच लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाया ना, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का उठाया जाए गुरुजी। बस इन्नी मोहलत दे देना गुरुजी, मेरे बच्चे स्टैंड हो जान, अपना समझन, अपना करन, सैल्फ डिपेंड बन जान। फिर तुसी मनु लैके चले जाना गुरुजी, फिर मैं आप ही तुहाडे नाल चलांगी गुरुजी, फिर मनु लै जाना। और मनु लैन गुरुजी तुसी आना परमात्मा, तुसी आना। मैं अपने प्यो कोल जाना चाहनी हाँ सीधा, और किसी को नहीं, क्योंकि किचड़ दी जिंदगी चो सानू बाहर कड्डो गुरुजी। अपने चरना चला के रखो, चरना चला के रखो गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना न्यू लाइफ देन दा, प्यार देन दा, सम्मान देन दा, बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहन दा शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। इन्ने प्यार नाल सुलांदे हो ओहदा शुक्राना, प्यार नाल उठांदे हो ओहदा शुक्राना, दिन भर साडे नाल रहिंदे हो ओहदा शुक्राना, साडे एक एक अरदास एक एक विनतियां सुनदे हो ओहदा शुक्राना गुरुजी। जिधर ही आवाज़ मारदे हो उधर खड़े पांदे हो ओहदा शुक्राना गुरुजी। कार च साडे बरकतां पाईयां ओहदा शुक्राना गुरुजी। सानू रोटी खिला रहे हो ओहदा शुक्राना गुरुजी। तन ढक रहे हो ओहदा शुक्राना गुरुजी। सानू ब्लेस कर रहे हो हर पल ओहदा शुक्राना गुरुजी। साडे पेके कार सानू वड्डे मंदिर बुलांदे हो ओहदा ते बहुत ही बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ही बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि अज मैं भी फकर नाल कह सकनी कि मेरा पेका परिवार खत्म नहीं होया है। मेरा संगत परिवार है, मेरा पेका परिवार है, मेरा प्यो है, मेरा है ना बड़ा मंदिर मेरा प्यो दा, मेरा पेका परिवार है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इन्ना प्यारा संगत परिवार देने वास्ते, इन्नी अच्छी सुमन आंटी देने वास्ते, जिहदे मैं अपना चैनल ते जिन्हां दे चैनल ते अपना सत्संग शेयर कर सकदी हां, अपनी परेशानियां संगत परिवार नाल तुहाडे नाल मैं शेयर करनी हां। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंत शुकराना। मैं अपने सत्संग नूं हत्थे विराम दिन्नी हां गुरु जी, मैं दोबारा सत्संग शेयर करांगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, सुमन आंटी बहुत जय गुरु जी, और आंटी ने भी बहुत बहुत सुमन आंटी ने बहुत ब्लेस करना, बहुत खुशियां देना, और इस लोड़ के उत्ते गुरु जी सब दे रोग कष्ट परेशानियां दुख कलेश सब खत्म कर देना परमात्मा, उस अग दे अंदर सब दे रोग कष्ट खत्म कर देना, सब दे कलेश खत्म कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी अपना भी ध्यान बहुत रखना गुरु पिता, ਤੁਸੀਂ ठीक रहोगे तो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे ठीक रहने गुरु जी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंत अनंत शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी को, शुक्राना मेरे सारे संगत जी लोग को। मैं एक छोटा सा सत्संग करना चाहती हूँ, जो कि अभी अभी कल ही मेरे ऊपर बीता है। मैं सोची कि इस सत्संग मैं संगत जी लोग को सेवा करूँ, गुरु जी को मैं बताऊं कि मैं इतने बड़े संकट से कल मुझे गुरु जी बचा लिए। जय सुमन आंटी जी, मैं अपने छोटा सा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। इसके पहले मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी लोग, कल मैं सत्संग दोपहर में सुनते सुनते हीटर लाइन कट गई थी, तो हीटर के ऊपर मैं अपना मोबाइल रख दी और सत्संग सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। लाइट आ गई, मुझे समझ में नहीं आया, और मेरा मोबाइल जो है एकदम से जल कर, संगत जी लोग, पूरे पीछे से प्लास्टिक सब जल गया, सब एकदम लाल हो गया मेरा मोबाइल। एक बैग मुझे लगा कि कोई मुझे जगा दिया है। मैं उठकर बैठ गई और किसी तरह मोबाइल को वहाँ से हटाई, चिपक गया था उसमें। मैं तो कही कि मोबाइल तो गया, लेकिन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पाए इतने अच्छे हैं कि मेरा इतना बड़ा कांड होने से हम लोग बच गए। और मेरी पोती सोई थी, मैं थी, यदि उसमें से ब्लास्ट हो गया होता बैटरी, तब तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा संकट आ गया होता। लेकिन गुरु पा ने छोटे में ही काट दिए। मेरे मोबाइल तो नुकसान नहीं हुआ, उसमें का कैमरा जो था वही थोड़ा सा खराब हुआ। अब ये तो आश्चर्य की बात है कि इतने जलने के बाद भी मेरी मोबाइल एकदम से वैसी की वैसी रही। ये सब गुरु जी के कृपा है। संगत जी लोग, मेरे गुरु पा ऐसे हैं कि इनका बखान बहुत, जितना करो उतना कम है। मैं कल से इतनी खुश हूँ कि मेरी मोबाइल थोड़े से में ही गुरु जी मेरा कष्ट काट दिए। मैसेज गुरु जी का आता था कि तेरे ऊपर परेशानी आने वाली है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सही में मेरा ही मैसेज है। और रात को खाना खाते समय मैं 5-6 दांत लगवाई थी, संगत जी लोग, वो दांत निकल कर एकदम बिखर गया। हम तो इतना डर गए कि अब फिर इतना पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी थोड़े से में ही कटवा दिए वो भी। आज मैं डॉक्टर के पास गई गुरुजी के आदेश से ही, और फिर वहाँ मेरा लग गया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब तो गुरुजी का कृपा है। संगत जी लोग, सुमन आंटी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ये सत्संग बहुत ही अमूल्य है, काहे कि मेरी जीवन की सवाल है। मैं और मेरी पोती तो एकदम, हम लोग एकदम भ्रष्ट हो गए होते, उसमें जल गए होते। इसकी बैटरी जो है, यदि ब्लास्ट हो गई होती तो हम लोग कहाँ के होते। लेकिन गुरु पा इतना मतलब हम लोग का कष्ट काटे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लोग, गुरु जी पर विश्वास करिए। वो जो सुन रहा है उसका भी भला हो, जो कह रहा है उसका भी भला हो, जो शेयर करेंगे उसका भी भलाई हो। गुरु जी, मैं इतना कहकर अपने वाणी को विश्राम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, मेरा ये चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं ये सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सुमन भल्ला सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। ये सत्संग 3 दिसंबर का है। मेरी बेटी को जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी है, वो जॉब करती है और उसको जॉब पर 40 किलोमीटर जाना पड़ता है और 40 किलोमीटर लौटना भी पड़ता है। 3 दिसंबर के दिन जब वह अपने जॉब पर जा रही थी तो रास्ते में काफी गायों का बड़ा झुंड आ गया और गाय को बचाने के चक्कर में उसकी एक्टिवा गिर गई और वो खुद भी गिर गई, जिससे उसको हाथ में, कोहनी में, पैरों में छिल गई और कुछ चोट लग गई, थोड़ी चोट लग गई और उसकी एक्टिवा भी गिर गई थी, उसको भी नुकसान पहुंच सकता था। गुरुजी ने अपनी बेटी की रक्षा की और बड़े कष्ट को छोटे में निकाल लिया। उसके सिर में भी चोट लग सकती थी, वह पूरी तरह गिर गई थी और एक्टिवा भी पूरी तरह गिर गई थी। गुरुजी ने अपनी बेटी की रक्षा की और बड़े हादसे से बचा लिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतने कृपालु, इतने दयालु, परम दयालु, हमेशा पल पल हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी। हर क्षण हर पल शुक्राने में ही बीते। मेरा नाम पिंकी है। मैं नजफगढ़ रोड चंचल पार्क में रहती हूँ। हर समय गुरुजी ने मुझे अपने इतने करीब रखा, मेरे अंग संग रहे, हमेशा मुझे संभालते रहे। मैं जितने भी शुक्राने करूँ ना, हर पल पल मेरा ये जीवन सारा का सारा गुरु के चरणों में है। मैं जितने भी शुक्राने करूं उतने ही कम हैं। मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। मैंने इतनी सारी जगह रिश्तों की बात करी, इतनी सारी रिश्तों की बात करी। मेरी बेटी मांगलिक थी, इसलिए मुझे रिश्ते मिलने में इतनी परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। जहाँ पर भी देखती वहाँ पर लड़के या तो पीने खाने वाले मिलते या तो नौकरी नहीं अच्छी होती, बड़ा परेशान थे। जहाँ पर भी देखो अपनी बेटी के रिश्ते की बात करते थे, नहीं हो पाता था। बस मैं पार्लर में जॉब करती थी, वहाँ से मुझे एक कस्टमर ने बताया, एक गुरुजी हैं, छतरपुर रहते हैं, हम भी जाते हैं, और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। बस मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगी, मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलती है और मेरे को पता भी नहीं है कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। बस उन्होंने कहा आप नहीं भी जाते ना तो घर के अंदर है गुरुजी का नाम लिया करो और वहाँ पर आपका ये काम जरूर पूरा हो जाएगा। बस मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया और गुरुजी के बहुत कोशिश करती रही, किसी तरह से जाऊँ, किसी तरह से जाऊँ, किसी तरह से जाऊँ। फिर बस एक दिन मुझे मौका मिला और सोमवार के दिन मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का मौका मिल गया। बस मैं उसी दिन तैयार होकर के जैसे तैसे करके मंदिर में चली गई
और वहाँ पर मैंने माथा टेका और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करा और घर आ गई। फिर मैंने बच्चों से कहा, बेटा और बेटी से कहा, तुम लोग भी मंदिर जाओ, किसी भी तरह से जाओ। बच्चों की एतवार की छुट्टी थी, बच्चे गए। पहले दिन जाकर के ही पता था नहीं कि किस तरह से लंगर प्रसाद चखना है। वहाँ पर गए, 4 जने एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, लंगर चखते हैं। बेटी को दूसरी जगह पर बैठना पड़ा, बेटे को दूसरी जगह पर और उन लोगों के साथ बैठना पड़ा। लेकिन जैसे ही बेटे को रोटी हाथ में दी तो रोटी के पर ओम लिखाया। अब बेटा को पता नहीं था मैं क्या करूं, इस रोटी का खाऊं नहीं खाऊं, पहली पहली बार गए थे, पता नहीं था, हाथ में लेके बैठा रहा। वो बेटे की जो थाली में रोटी थी, सबको जो मिली हुई थी प्रसाद, उसमें से एक बुजुर्ग भी थे वहाँ पर, अंकल। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, आप रोटी क्यों नहीं खा रहे? हाथ में रोटी लेके कहता, इस पे ओम लिखा हुआ है, पता नहीं मैं खाऊं या ना खाऊं, क्या करूं मैं इसको? फिर बजरंग अंकल जी को दिखाया। उन्होंने कहा, आपकी रोटी पे तो स्वयं ओम लिखा हुआ है, ये तो गुरु जी के आपको आशीर्वाद है, आप खा लो। तो वो मेरे बेटे ने खा लिया वो रोटी और घर आकर के बहुत खुश से वहाँ से जल प्रसाद लिया। घर आ गए, वो जो बेटी के साथ, जो बेटे के साथ में बैठे हुए थे, उन सबको भी उसने ओम दिखाया। उनकी रोटी, मेरे बेटे की रोटी पर वो था। फिर तो बस वो जो है 3-4 बार मैं गई बड़े मंदिर और बच्चे भी जाते रहे। बेटे की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। ये मेरा पहला सत्संग था। सत्संग तो मेरे रोज हैं सुमन आंटी। मैं यही सोचती थी मैं शुक्राना कैसे करूं। कल मैं हमेशा हमेशा रोजाना टीवी पर ये सत्संग सुन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर सत्संग हुए ऐसी कोई जगह नहीं। मेरा घर बहुत छोटा सा है, गुरु जी का उसी में एक ही जगह पर मैंने स्वरूप लगा रखा है, उसी के आगे अरदास करती हूँ। घर बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा घर है। बहुत दिल करता है संगत के साथ बैठने का, सत्संग में जाने का, नहीं हो पाता है। बेटे ने टीवी पर ही सत्संग के प्रोग्राम, बेटे ने कहा, मम्मी यूट्यूब पे जा करके सत्संग देख लो। रोजाना सत्संग देखती हूँ, रोजाना। आज आपका भी मैंने सत्संग देखा और मुझे मौका मिला कि इस तरह से हम सत्संग सबके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे हर दिन का सत्संग है सुमन आंटी। आज का सत्संग इतना ही। फिर आगे अगर ये आगे आया, सबको सुनने को मिला, तो मैं फिर से सत्संग करूंगी, क्योंकि ये जो मेरी जिंदगी है ना, ये गुरु जी की ही दी हुई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज लोहड़ी का त्यौहार है। सबसे पहले आपको लोहड़ी की त्यौहार की बहुत 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 मुबारक। संगत जी, आपको भी लोहड़ी की बहुत 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 मुबारकें। सारा दिन अच्छा निकले, त्यौहार अच्छा मने।
सारे दे जीवन च खुशियां ले आए, मंगल ही मंगल होए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल का है मेरा एक सत्संग है। जैसे लोहड़ी का त्योहार है तो बेटी के घर देने जाते हैं। लोकल है वो, मैं देने गई। बहुत बहुत अच्छा था सब कुछ। मेरी बेटी का छोटा बेटा है, साल का। सारी देर सारा टाइम अच्छे से बैठे, बात बात की। अचानक ही बेटी के नन्हे से बच्चे को जो सेंटर टेबल होता है वो उसके मुंह में लगा। दांत और लिप्स शायद दब गया, उसमें काफी खून आने लगा। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था जो वो छोटे से में टाल दिया और उस बच्चे की रक्षा की। लख लख वार शुक्राना, करोड़ करोड़ वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपादा, जो पल पल हमारी रक्षा करते हैं। जब मैं घर से निकली थी तो मैं अपने गुरुपा को साथ लेके गई थी। गुरुपा, चलो आप अपने नातिन के घर, हम दे के आते हैं। तो गुरुपा वहां विराजमान थे। उन्होंने ही हाथ पकड़ के बच्चे का हाथ थाम लिया और अनहोनी से बचा लिया। जो बड़ा संकट था उसको छोटे में टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है, उतना कम है। क्या वड्याई करूं मैं आपकी, जितनी करूं उतनी कम है। गुरुपा, आप इतनी मेहरे बरसाते हो, इतनी कृपा करते हो, पल पल साथ रहते हो, पल पल साथ निभाते हो और हमारे सारे दुखों का अंत करते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज अभी जब मैंने सत्संग सुनने लगी तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू सत्संग इग्नोर करती है। नहीं गुरुपा, मैं इग्नोर नहीं करती। मैं आप जैसे गृहस्थी है, कभी बिजी हो गया, जैसे कल भोग भी था, जाना भी था, उस वजह से नहीं सुन पाई गुरुपा। मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ आपके आगे, दोनों हाथ जोड़ के आपके चरण पकड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें गुरुपा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो हर पल आपका साथ चाहिए। आपका साथ अच्छा लगता है, सत्संग सुनना अच्छा लगता है। लेकिन अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी, इसी तरह आप मुझ पर और मेरे परिवार की रक्षा करना, अंग संग सहाय रहना, बस हर दुख से उभारना। जिस तरह आप हमारी रक्षा करते हैं, हम पर कृपा करते हैं, मेहरे बरसाते हैं, उस तरह सारी संगत का कल्याण करना। गुरु जी, मैं भूल गई, मैं अपनी बेटी की तरफ से
छोटे नाती की तरफ से, उसके पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस इसी तरह सारी संगत का कल्याण करना, सारी संगत का भला करना, सारी संगत के दुखों का अंत करना, सब दी मनोकामना पूर्ण करना गुरुपा, सब दी मनोकामना पूर्ण करना। जिदे जड़े काम रुके हुए हैं पूरे करना, जिदी शादी नहीं हो रही ओदी शादी होए, जिदा घर नहीं बन रहा घर बने, जिदी जॉब नहीं लग रही जॉब लगे। बच्चों ते हथ रखना गुरुपा, बच्चों नूं सही मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना। बेटियां अपने घर च सुखी रहन, स्वस्थ रहन, थोड़ी कृपा बरसती रहे। गुरु जी अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।